Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Virtual Help will help you to solve your small query to complete your task on a computer system. Before I start today's topic, please subscribe my channel and click on this bell icon. When you click on this bell icon, you will see my channel videos on our first preferences, and please share my channel for those people who need a virtual support. Today we are going to discuss computer ethics. In the last class we started a computer ethics and we discussed that how we can protect our information, or if we are using some information, like for example we are completing an assignment, we are completing some worksheet, or we are completing some notes, or if we are copy pasting some information from a book or from someone website, or someone is using some information from the research article or something whatsoever we all are using. What we all have to do is we have to give the reference to the person, otherwise it is considered as a plagiarism, and it is against of computer ethics that we can use someone information without acknowledging them. So we will discuss further in today's session how we are going to discuss computer ethics. Computer ethics is a set of principles set out to regulate the use of computer, and there are three different factors which we already discussed. It is a quick review from the last class how we can understand, and what's your book is saying, and how you can improve your knowledge regarding the computer ethics. So computer ethics is the principle of set of the rules. The first factor of computer ethics is intellectual property rights. Wherever you talk about intellectual, okay, it's mean that you have some property and you wanted to share, or you are sharing someone's property with you, but before you start using, you have to take the permission or do not breach their personal privacy. For example, I give you my laptop to use. So for example, you take my laptop to check your emails. So just check your emails. You are not opening some other file without taking my permission. Like for example, D ड्राइव को आप एक्सेस कर रहे हो, E ड्राइव को आप एक्सेस कर रहे हो, और कोई दूसरी ड्राइव को आप एक्सेस कर रहे हो without taking a permission. This is intellectual property rights. This cover for few examples of copying a software without the permission of the owner. कि लैपटॉप आपको दिया था एम एस वर्ड इस्तेमाल करने के लिए, बट आपने जो है वो एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया है आपके पर्टिकुलर यूज़ के लिए, कि भाई आपको मैंने बोला कि भाई आप कुछ दिन के लिए इस्तेमाल करो, बट आपने क्या किया, वो सॉफ्टवेयर उठा के किसी और को दे दिया कि भाई तू भी इस्तेमाल कर दे, या आपने अपने दो मजीद डिवाइसेस के ऊपर उसको इंस्टॉल कर लिया। वही बात है कि आपको लैपटॉप दिया है ईमेल चेक करने के लिए, बट आप क्या कर रहे हो कि आप उसके ऊपर दूसरी गेम्स भी खेल रहे हो, ठीक है, आप उसके दूसरे फीचर्स भी इस्तेमाल कर रहे हो विदाउट टेकिंग अ परमिशन। इफ यू वांटेड टू यूज, टेक द परमिशन कि भाई आई वांटेड टू यूज योर कंप्यूटर फॉर दिस एंड दिस पर्पस, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी अगेंस्ट ऑफ योर कंप्यूटर ethics. Then the second factor, privacy issue. Privacy, as I already told you, the privacy can be a personal. There are two type of the thing: piracy and privacy. Piracy and privacy. Most of the time, we are purchasing a software CD from Rambo Center or any computer shop with the crack of the MS Office, with the crack of Windows. So they all are known as piracy. Piracy is mean to making a copy, okay, making a copy of a original file without taking the owner's permission. Privacy, कि you are sharing some secret information or confidential information without telling the person. Over here this said कि for example hacking or any illegal access to another personal data, it is known as a privacy, कि आपने उसकी प्राइवेसी को ब्रीच कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप है और इट इज माई पर्सनल लैपटॉप, वाई वी ऑलवेज सेज इट इज माई पर्सनल लैपटॉप,
because whatsoever the information I am going to save into this computer, it is my own. बेशक मैं सनपेड्स के लिए पेपर तो सेव कर रहा हूँ, मैं सनपेड्स के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट सेव कर रहा हूँ, बट वो वर्कशीटें बनाई किसने है? वो वर्कशीटें मैंने बनाई है, मेरी क्लास के लिए बनाई है। केमिस्ट्री के टीचर ने बना के मेरे को नहीं दी है, या उर्दू के टीचर ने नहीं दी है, ये कंप्यूटर के टीचर की है, और कंप्यूटर का टीचर ही बना के दे रहा है। मैं किसी तीसरे कंप्यूटर टीचर के इस्तेमाल नहीं कर रहा। जितनी भी चीज़ें बना रहा हूँ, बेशक मैं बुक से कंटेंट ले रहा हूँ, बट वो कंटेंट मैं बना रहा हूँ मेरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी एक मेरे हद तक पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आ रहा है। बाकी पर्सनल क्या है, मेरा सोशल मीडिया है, इसके ऊपर मुझे जो पर्सनल चीज़ें काम करने के लिए, जो मुझे मेरा अपना काम करने के लिए अगर मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए या मैं गेम खेल रहा हूँ, तो वो दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि अगर राफे फ्री फायर खेलता है, ठीक है, तो सरकाशी भी फ्री फायर खेल रहा है, नो। राफे फ्री फायर खेल रहा है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। या अगर नसीर जो है वो पबजी खेल रहा है तो वो नसीर की चॉइस है। इफ शॉन इज यूजिंग सम डिफरेंट सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो शॉन की पर्सनल कैपेसिटी के अंदर है। इट इज नॉट कंपलसरी कि मैं, हाँ, बट व्हाट इज बिकम अ कॉमन वन और फॉर एवरीवन द पब्लिक वन, जो हम इस टॉपिक को शेयर कर रहे हैं। कंप्यूटर एथिक्स का टॉपिक जो अभी इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सबके लिए कॉमन है। इट्स मीन इट्स अ पब्लिक टॉपिक। ये किसी एक के लिए पर्सनली हुआ, हाँ, जब आप इसको आप अपने एंड पे बात करोगे कि मैं उस क्वेश्चन का जवाब क्या लिखूंगा, इट इज योर ओन आंसर। तो यहाँ प्राइवेसी की जो बात की जा रही है, वो यही पे से एग्जांपल भी आपको दी, क्या हैकिंग एंड इलीगल एक्सेस और एनी इलीगल एक्सेस और एनी इलीगल एक्सेस। कैसे बोला, आप हैकिंग करो, फिशिंग करो, कुछ भी करो, जहां आपकी पर्सनल डेटा को कोई ब्रीच करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइवेसी को ब्रीच। अक्सर क्या होता है कि हम अपने पेरेंट्स को ही बोलते हैं, डू नॉट एंटर टू इनटू माय रूम बिकॉज आई हैव माय सम प्राइवेसी इन माय रूम, तो बिफोर यू एंटर जस्ट नॉक इट। एनी हाउ एथिकली वो एक अलग प्लेटफॉर्म पर चला जाता है कि नाउ वी आर इन द दैट टाइप ऑफ स्टेट कि वहाँ पर आप पेरेंट को ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते। बट अगर यही चीज़ें आप अब्रोड चले जाओ, अप कंट्री चले जाओ, तो वहाँ जैसे ही बच्चा 18 ईयर्स का हुआ, तो पेरेंट्स का राइट उसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। देन द गवर्नमेंट विल टेक द चार्ज, ठीक है, गवर्नमेंट विल इंडिपेंडेंसी दे देती है बच्चे को कि भाई आप 18 साल के हो गए, अब आप खुद जॉब करो, अपनी स्टडीज कुछ करो। अगर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो फेयर इनफ, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू आस्क योर पेरेंट्स के सपोर्ट। आप 18 के हो गए हो, आप अपने पास से करो, तो फ्रॉम देयर दे स्टार्ट देयर ऑन प्राइवेसी ओवर देयर। बट एक और चीज आपके कंप्यूटर के इसी चैप्टर के अंदर है, वो है पायरेसी। हम जिसको नहीं पायरेटेड सीडीज बोलते हैं कि यार विंडोज की पायरेटेड सीडी है, हम सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली एक्चुअल जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो पायरेसी इस्तेमाल होती है, कि ओरिजिनल चीज की कॉपी बना देना, सेम एज इट इज विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्शन, इट इज नोन एज अ पायरेसी। प्राइवेसी अ पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्राइवेसी इज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड पायरेसी इट्स अ software copy. You are making a copy of legal software and sharing or selling the same software illegally with the crack or with the alternative activation key. So it is known as a piracy. The third part or the third factor of computer ethics, effect of computers on society, कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जब आ रहा है तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं अपने करियर के अंदर, और साथ साथ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब को खो रहे हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर 10 लोगों का, 100 लोगों का काम बहुत आसानी से कर रहा है, तो उन 100 लोगों की या 10 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर 5 मिनट क्राफ्ट या ब्लॉसम की एक फेसबुक पेज है, जिसके ऊपर वो शॉर्टकट्स बता रहा होता है आपको डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर, कि किस तरीके से आप अपना काम आसान कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके से मशीनरी आपकी लॉन्च हो गई है, और उस मशीनरी के थ्रू किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को जो है वो कवर कर सकते हो। जैसे दरख्त काटना है, या प्लांटेशन करनी है, या ज़मीन रोड काट के दोबारा से रोड उसके ऊपर बनाना है, या कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट चीज़ें आपको ट्रेवल करवानी है, तो किस तरीके से मशीन की हेल्प से आप कर सकते हो। दूसरा मैं वहाँ पे देख रहा था कि कोई आई थिंक बेकिंग कंपनी थी, जो बेकरी कंपनीज होती हैं लाइक केक बनाना, और दूसरी स्वीट
थिंग्स बनाना जो बेकरी के अंदर इस्तेमाल होती है, तो उसमें वो एक कटिंग की मशीन थी। अब वो एक कटिंग की मशीन ऐसी थी कि बहुत सारे एग जो है ना वो उस मशीन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ट्रेवल करते हुए आ रहे थे, और एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर वो उस एग को तोड़ते थे। उस एग को तोड़ने के बाद जो आपका जो येलो एरिया होता है, ठीक है, जिसका उर्दू में जर्दी बोलते हैं, उसको वो अलग कर रहा था, और वाइट जो उसका वाटर होता है उसको वो अलग कर रहा था। ऑटोमेटिकली मशीन उसको अलग कर रही थी। तो देखो कि अगर मैं उसी काम के लिए बंदे रखता तो ऑलमोस्ट मुझे 10 to 15 पर्सन चाहिए थे, जो एक को पहले एक कार्टन से बाहर निकालें, उसको मशीन पे रखें, उसके बाद मशीन के साथ वो उसको एक साइड के ऊपर बंदा तोड़ रहा होता, दूसरा बंदा जो है उसको उसमें से वो येलो एरिया अलग कर रहा है, फिर वाइट एरिया अलग कर रहा है, तीसरा चौथा बंदा उसको इस चीज़ को मेक श्योर कराए कि कोई अंडे आपस में टूटे ही नहीं, अगर कोई अंडा टूट रहा हो या ख़राब हो गया हो तो उसको वो अलग करे। बट ये सारा का सारा काम जो है मशीन अब ऑटोमेटिकली कर रही है। तो देखो अगर 5 से 10 बंदों का जो काम सिंगल मशीन कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाना शुरू हुई। बट वहीं पे क्या हुआ कि एक एडवांटेज हुआ कि वहाँ पे एक्यूरेसी रेट जो है और हाई हो गया। जहाँ 10 लोग उस अंडों को तोड़ के जर्दी और सफ़ेद वाला एरिया अलग करने के लिए मे बी घंटा लगा रहे थे, वहीं पर वो मशीन हार्डली 5 से 10 मिनट लगा रही है। The efficiency of work also increase, but at the same time the people start losing their job as well. वो अक्सर जो एक डिबेट है हमारे पास कि कंप्यूटर विल रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग, तो वो वाली पार्ट जो है वो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कुछ कंप्यूटर्स के एथिक्स हैं, स्पेशल एथिक्स हैं जो सीआई में आपसे पूछे जाते हैं कि राइट डाउन 4 कंप्यूटर एथिक्स, 5 कंप्यूटर एथिक्स और 3 कंप्यूटर एथिक्स डिपेंडिंग ऑन द ईयर बेसिस। कभी 2 नंबर का सवाल आता है इसमें से, कभी 3 नंबर का सवाल आता है, कभी 5 नंबर का आता है, कभी आता है कि भाई राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन पायरेसी एंड प्राइवेसी, ठीक है, व्हाट इज प्लेजिज्म। अब यहाँ पर एक कंपनी है एसीएम, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मशीनरी, और एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से, इलेक्ट्रिक लैंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के नाम से एक इंस्टीट्यूट है जो दुनिया भर के अंदर इंजीनियरिंग एफिलिएशन से जितने इंस्टीट्यूट हैं या इंजीनियरिंग रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उसको एफिलिएट करता है और उसको डिग्री वेरीफाई करता है और बताता है कि भाई कि आपने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशंस क्या होंगे। तो जो अभी हम 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में भी मेंशन है, उनको अप्रूव किया है इस दो एसोसिएशन ने, ठीक है। इन दो की एसोसिएशन की परमिशन के साथ, अप्रूवल के साथ सीआई ने ये पॉइंट्स यहाँ पे कंपाइल किए हैं कि ये वो है तो बहुत सारे पॉइंट, उन्होंने कहा ये वो 10 पॉइंट है कि जो हमारे बच्चे को पता होना ज़रूरी है। द फर्स्ट वन कि जो वहाँ पर वो बात कर रहा होता है कि आपके पास क्या है, द फर्स्ट वन इज to accept responsibility in making decisions consistent with the safety, health, and welfare of the public, and to disclose prominently the factor that might and anger the public or the environment. ये इन्होंने एक जर्नल बात यहाँ पे करी है कि कंप्यूटर एथिक्स के अंदर सबसे पहला एथिक्स जो है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी, उसका हेल्थ और उसका वेलफेयर इम्पोर्टेंट हो और कंसीडर हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे 1000 लोगों की जॉब जा रही है, तो इससे ह्यूमन की जो सेफ्टी है, जो जॉब सिक्योरिटी है, वो आपने ब्रीच कर दी। वेलफेयर, उसकी जो पेमेंट्स हैं या उसको जो सैलरीज वगैरह थी वो डिस्टर्ब हो गई। हेल्थ, कहीं ऐसा तो नहीं जो मशीनरी आपने वो इम्प्लीमेंट की है उससे कोई हेल्थ इशू वहाँ पे हो रहा हो। जैसे आपने एक मूवी देखी थी हॉलीवुड बॉलीवुड की, रोबोट 2.0, जिसके अंदर उन्होंने टोटली जो मूवी बनाई है, जो पहली बार मुझे थोड़ी सी ढंग की मूवी लगी है उनकी टेक्नोलॉजी के वाइज, जो उन्होंने बताया कि भाई हम जो 5G आने वाला है
उससे जो हमारे बर्ड्स हैं या जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है या बर्ड की जो लाइफ साइकिल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, जो कि रियल लाइफ में ट्रू है, नॉट 100% बट 50 to 70% ट्रू है कि उससे ये नुकसान होते हैं। 5G से वो रेज निकल रही हैं जो बहुत छोटे छोटे बर्ड्स के लिए या कुछ ऐसी स्पीसीज हमारे पास हैं, ठीक है, जिनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। आई थिंक 2017 के अंदर एक इमेज बहुत वायरल हुई थी जिसपे वाईफाई के सिग्नल की ना रेज दिखाई गई थी। वो रेस इतनी ज्यादा थी कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो वहां पर काम नहीं कर रहा था उस एरियाज के अंदर। ह्यूमन ब्रेन के ऊपर वो रेस इतनी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। उसमें जो हमारे जो सैटेलाइट लगे हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग जो है कुछ पैसों के लिए हम कुछ पैसों के लिए क्या करते हैं कि हम बेंगलोर में रह रहे होते हैं तो हम ऊपर जो टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स होते हैं बड़े बड़े एंटीना वाले, हम अपने घर की छत के ऊपर उनको अलाउ कर लेते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम जनरेटर भी हमारा होगा, बिजली भी हमारी होगी, अगर आपकी लाइट जाएगी तो आपको बिजली भी आपको मिलेगी फ्री में, और हम आपको पर मंथ जो है 50,000 60,000 या 1 लाख रुपीज़ देंगे, हमें आपके घर के ऊपर ये टावर लगाना है। वो टावर का जो साइड इफेक्ट है वो कोई भी नहीं देखता। हम उस टावर के साइड इफेक्ट को बिल्कुल नहीं देखते। हम ये बोलते हैं यार वो लाख रुपए आ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, बिजली मिल रही है, बंदा आएगा छत ही तो हमारी इस्तेमाल कर रहा है, हमें क्या करना है। तो लास्ट एक रिसर्च थी आई थिंक 2016 के अंदर, जब मैं खुद एक थीसिस लिख रहा था हमारे मेरे अपने कोर्सेज के ऊपर, मैं जब एमफिल कर रहा था, तो उसके अंदर जब मैं इत्तेफाक के मेरा थीसिस वो नहीं था, मेरा थीसिस तो सोशल मीडिया और ये सब चीज़ों के ऊपर थे, किस तरीके से हम सोशल मीडिया के ऊपर वेबसाइट रैंक करती है और ये सारी चीज़ें उसके ऊपर थी, सिक्योरिटी और वो। तो वहां पर जब मैं एक आर्टिकल पढ़ा तो उस आर्टिकल में ये मेंशन था कि ये जो टावर लगते हैं, उस टावर लगने से जिस घर में लगते हैं उस घर में हार्ट की प्रॉब्लम, ठीक है, मेंटली डिप्रेशन, हेडेक के उसका सर में लोगों के दर्द होना, और साथ ही साथ ब्रेन ट्यूमर के होने के चांसेस जो है 70 to 80% होते हैं। तो जब मैंने रिसर्च पढ़ी और मैंने उस आर्टिकल को ऑथेंटिकेट किया और जब चीज़ें उसने रेफरेंस जो दी थी, जब कुछ चीज़ों को जाके मैंने सर्च किया, तो रियली वहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज मेंशन थी कि जहाँ जहाँ ये टावर्स लगे हुए उस टावर के ऊपर बहुत ज़्यादा सिग्नल्स की डिवाइसेस लगी हुई है। मतलब एक डिवाइस लगी हुई है तो उसका रेशो कम है। अगर अक्सर आपने देखो जो टावर लगे हो तो उस पर गोल या वाइट कलर के बहुत सारे एंटीनास लगे हुए हैं, कोई सर्कल के लगे हुए हैं, कोई रेक्टेंगल फॉर्म में लगे हुए होते हैं, कोई स्क्वायर फॉर्म में लगे होते हैं, आपको ऐसा लगता है वो स्पीकर लगे हुए हैं, बट वो सारे सेंडर और रिसीवर की डिवाइसेस लगी हुई होती है, वो राउटर्स होते हैं। बेसिकली वो सेंडर रिसीविंग के लिए जो राउटर्स इस्तेमाल होते हैं वो राउटर होते हैं, और वो हर टाइम जब कोई भी मोबाइल फोन उससे कनेक्ट होता है तो उसको डेटा सेंड करने और रिसीव करने के लिए उसको रेज जनरेट करनी होती है। आपको क्या लग रहा है कि अभी हम अपने घर में बैठे हुए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या मेरा मोबाइल फोन रेडिएशन जनरेट नहीं कर रहा है? लाजमी कर रहा है, बट इसकी जो रेडिएशन है वो ह्यूमन को इफेक्ट करने के लिए बहुत कम है। बट अक्सर फिर भी हम क्या बोलते हैं कि सोने के टाइम पे मोबाइल फोन जो है अपने तकिए के नीचे नहीं रखो। अगर आप मोबाइल फोन अपने पॉकेट जो अपर शर्ट का जो टॉप पॉकेट होता है उसमें ना रखो, क्योंकि वो हार्ट से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। तो जब आपको कोई कॉल करता है तो आपके फ़ोन की रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। जब वो फ़ोन की रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई होती है तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले ये कि आपका डिसीजन इन सब चीज़ों को कंसीडर कर रहा हो कि ये सारी चीज़ें आपके पास है कि सेफ्टी होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए और वेलफेयर होनी चाहिए, और आप डिस्क्लोज करोगे प्रॉब्लमली द फैक्टर दैट माइट इंदर एंगर द पब्लिक और द एनवायरनमेंट। उस डिवाइस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पब्लिक को और उस एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहा है वो आप पहले ही डिस्क्लोज करोगे कि भाई हम अगर ये टावर लगा रहे हैं तो अक्सर आप देखोगे टावर के नीचे एक जंजीरें वो लगी हुई होती है, लोहे की कांटे लगे हुए होती है, लिखा हुआ होता है कि डू नॉट टच, डिस्टेंस फॉर 50 मीटर्स 10 मीटर्स, हाई वोल्टेज, कि ये टावर बहुत ज्यादा नुकसान दे। अच्छा, आप लोगों में से कितने सफारी पार्क का विजिट किया? सफारी पार्क का अगर आप लोगों ने विजिट किया तो उसमें एक एडवेंचर पार्क बना हुआ है। एडवेंचर पार्क को अगर आपको पूरा देखना होता है तो वहां पर एक माउंटेन है जिसकी सबसे ऊपर जाना पड़ता है आपको, चोटी के ऊपर। जब आप उस चोटी पे जाते हैं ना तो वहां पे आप देखो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स लगे हुए हैं, तो आपको उस बिजली की ट्रांसमिशन की आवाज आती है। लेकिन वहां पर अगर आपने कभी किया हो तो आप
हाई वोल्टेज जितनी भी हमारे ये टावर्स लगे हुए हैं बिजली के, अगर आप उसके पास से ट्रेवल करो तो आपको वो आवाज़ सुनाई देगी जब बिजली ट्रेवल कर रही होती है। बेसिकली कुछ लोग, मैंने एक बंदे से पूछा था जब मैं पहली बार जब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया था, तो उसने मुझे दो लॉजिक दी थी। एक लॉजिक उसने ये थी, बोला जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं यार हम लोग के जो एयर है इसमें एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स और मिनरल्स इस एयर के अंदर ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो जब वो हाई वोल्टेज के साथ टकराते हैं तो वो आवाज़ जनरेट करता है। मैंने कहा ठीक है, फेयर इनफ, समझ में आ रहा है कि चलो। और मैं कह रहा सेकंड क्या है? बोला सेकंड ये कि हमारी जितनी भी बिजली है वो कुछ स्टेप और कुछ गैप के साथ ट्रेवल करती होती है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अभी सफारी पार्क है, सफारी पार्क का जो है कि वो 5000 मेगा वोल्ट इस्तेमाल करेगा, अचानक से सफारी पार्क के अंदर 1000 मेगा वोल्ट बंद हो जाता है, तो जो ट्रेवल है बिजली जहाँ पे ट्रेवल 5000 ट्रेवल कर रही थी वहां पे वो 4000 पे आ जाती है। और जैसे ही वो दोबारा से रिज्यूम होता है तो दोबारा से वो बिजली का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए जो आवाज आती है वो आती है। पर इसकी कोई मुझे जस्टिफिकेशन अभी तक नहीं मिली कि यार ये कौन सा है और क्या रीजन है वो आवाज आने का। बट उसी के साथ एक चीज, आप जब जाओगे तो जब उस टावर के आप करीब जाओगे तो आपको एक बॉडी की अट्रैक्शन वहां पर होगी, ऐसा लगेगा कोई चीज आपको खींच रही है। तो उसमें जो ह्यूमन बॉडी, आपको कहते हैं कि हमारे इंसान की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अक्सर आपने प्रैक्टिकल देखा होंगे लोग अपनी बॉडी से बल्ब जला रहे हैं, मोबाइल चार्ज के लिए टेक्निक बना रहे हैं कि एक उन्होंने बिजली का तार कुछ और पकड़ा हुआ है और एक तार से अपनी बॉडी में कनेक्ट करके वो हल छोटी सी एलईडी जला रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इंसान के जिस्म में है, तभी जो है वो शॉर्ट सर्किट बॉडी के अंदर होता है जब इंसान को करंट लग रहा होता है। तो ये वो एनवायरनमेंट की बात है पॉइंट नंबर 1 में जो डिस्कस किया कि भाई आपको वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी है। तो वो क्या करते हैं, टावर के आगे एक बैनर लगा देते हैं कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी 2000 वोल्ट, 20000 वोल्ट, डू नॉट टच, डेंजर। ठीक है, ये सब चीज़ों की वो लगाता है कि पब्लिक अवेयरनेस और कोई टच नहीं करे। सेकेंड पॉइंट ये, टू अवॉइड अ रियल or precise conflict of interest whenever possible, and to disclose them to affect parties when they do exist। अगर कहीं पर भी कोई पार्टी के साथ, मतलब पार्टी का मतलब कोई यूजर और कंज्यूमर भी हो सकता है, कि मैं कस्टमर भी हो सकता है, ओनरशिप ऑफ द कंपनी हो सकती है कि मैं कोई चीज़ सेल आउट आपको कर रहा हूँ और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो मैं अपना फायदा नहीं देखूंगा, भाई मैं तो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। जो पॉइंट नंबर 1 में बात की कि आप डिसीजन ले रहे हो, मैंने डिसीजन ले लिया टावर लगाना है। अब वो टावर लगाने के लिए कंपनी मेरे पास आई, ठीक है। मैंने पूछा, फॉर एग्जांपल नसीर मेरे पास आया, नसीर ने बोला कि सर काशी सर मुझे जो एक टावर लगाना है, मैं जो है वो अपनी एक कंपनी टेली कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे टावर लगाना है, और टावर लगाने के लिए आप मेरे को एरियाज, ये 5 एरियाज जिसके ऊपर जो है मैं एरियाज लगा। उसने बोला भाई मुझे एक टावर लगाना है सदर के अंदर, एक टावर लगाना है मेरे को गुलशन के अंदर, एक टावर लगाना है साइड में, और एक टावर मुझे लगाना है क्लिफ्टन के अंदर। तो ये 4 से 5 मुझे टावर लगाने हैं। और वो कंपनी आज नसीर मेरे पास है, नसीर ने मुझे नहीं बताया कि वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, कि पब्लिक है या नहीं है। तो बोला भाई ये लोकेशन है, और उस लोकेशन को मुझे प्रॉपर तरीके से उसने डिस्क्लोज नहीं किया। मैं वो कंपनी हूँ जिसको वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करवानी, तो मेरा ये काम है कि मेरे को अपना फायदे देखे बगैर मुझे उस पार्टी से ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा जो पॉइंट नंबर 1 के अंदर बताई गई, ताकि किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए, किसी भी किस्म का नुकसान अगर हो रहा है तो वो दोनों पार्टीज आपस में पहले ही म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लें कि ये प्रॉब्लम हमारे पास आने वाली है, और इन सब चीज़ों को लेकर हम जो है वो आगे मजीद चलेंगे। पॉइंट नंबर 3, टू बी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक इन स्टेटिंग क्लेम्स और एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा। आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ता है। जैसे अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछा सर आप हमें हैकिंग सिखाओगे, मैंने बोला यार ये मेरे एथिक्स में नहीं है। एज अ टीचर हमें ये अलाउ ही नहीं है कि मैं आपको वो काम सिखाऊं जो गलत है। हाँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा, सही गलत के बारे में बताऊंगा कि सही चीज़ क्या है गलत चीज़ क्या है, बट करना मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप खुद सीखते हो इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बट एज अ टीचर आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू द हैकिंग। हाँ, बट आई विल डेफिनेटली टीच यू हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हैकिंग। इसलिए हमने वो 6 सिक्योरिटी रिस्क जो पढ़े थे उसमें हमने हमेशा प्रिकॉशंस की बात की, और ये बात की कि अगर हम विक्टिम बन जाते तो हम अपने आप को सही कैसे करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होना पड़ता है, ऑनेस्ट होना पड़ता है अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ। जैसे एक और एग्जांपल इसकी मैं आपको दे दूँ कि आप जो डेटा या जो टेस्ट दोगे, मैं वही रिजल्ट आपका दूंगा। मैं किसी को पर्सनल बेसिस के ऊपर जाके मार्क्स इंक्रीज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरी क्लास में अगर 25 बच्चे हैं तो वो 25 का जो डेटा मेरे पास है, मुझे उसके साथ उनको ऑनेस्ट रहना है। मुझे हर बच्चे के साथ ऑनेस्ट रहना है कि बेटा आपने जो पेपर किया था उसमें आपने आउट ऑफ 50 मार्क्स लिए हैं, और दूसरा जो बच्चा है उसने, अगर एक बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, उसने 45 मार्क्स लिए और एक ने 20 मार्क्स लिए, तो मैं कभी भी जो है उसको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर या उसको फेवर देके 20 से उसको 35 या 40 नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे बच्चे के बराबर ले जा रहा है। ये एथिकली रॉन्ग है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर में मिलती है, तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो द ओरिजिनल डेटा और रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4, टू रिजेक्ट ब्रेवरी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, कि हमें जो है ब्रेवरी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, ये क्योंकि ये गलत है और इसके साथ जो है हम कभी भी फेवर में नहीं होते। टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन एंड प्रोटेक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे जो मुश्किल काम हमारे पास चल रहा है आज के ज़माने में, वो यही चल रहा है कि जितने भी स्कूल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 वाली, टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। स्कूल्स आजकल ये काम नहीं कर रहे, वो इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी की। जो टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में, वो उसको अंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बट वो कह रहे हैं बस हमें इसको इस्तेमाल करना है, हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो लेनी है। कोई ये नहीं देख रहा कि क्या वो टेक्नोलॉजी उस ऑनलाइन क्लासेस के अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर अप्रोप्रिएट है तो क्या हमने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है या नहीं किया। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं हमारे पास हैं जिन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशन यूज़ किए हैं जो स्टैंडर्ड है, जैसे जूम है फॉर एग्जांपल। तो स्कूल ने क्या किया है कि जूम की आईडी परचेज की और उसने अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को वो आईडीज दे दी कि भाई ये ऑफिशियल आईडीज हैं जिसके थ्रू जो है वो टीचर क्लास लेगा, और जो स्टूडेंट को आईडीज स्कूल ने दिए हैं उसी आईडी को लेकर स्टूडेंट अपने पास लॉग इन करेगा, ड्यू टू प्रोटेक्ट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, टीचर इंफॉर्मेशन, टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट। और हम साथ में मॉनिटर भी कर सकेंगे कि बच्चे की अटेंडेंस क्या है, और वी हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन टू द टीचर। जो यहाँ पे बात की है, to improve the understanding of technology, its appropriate application and potential consequences। हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात नहीं करते। जैसे अभी मैं गूगल मीट आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो गूगल मीट के मेरे पास दो अकाउंट है, एक फ्री अकाउंट है और एक लाइसेंस अकाउंट है। इसी तरीके से जूम हमारे पास है, एक जूम का फ्री अकाउंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक जूम का लाइसेंस अकाउंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट जूम जो है वो थोड़ा सा हैवी है सॉफ्टवेयर वाइज, ठीक है, बट उसके फीचर बहुत अच्छे हैं। वाइट बोर्ड है, उस पर रिस्पॉन्स करने का ऑप्शन अच्छा है कि आप कमेंट कर सकते हो, इमोजी सेंड कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शन है। हर किसी के अपने अपने अलग अलग ऑप्शन होते हैं, बट कौन सा अप्रोप्रिएट है कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है, ये डिसाइड दो फेसेस के ऊपर या तो टीचर डिसाइड करे या स्कूल डिसाइड करे। हम लोगों के केस में स्कूल ने डिसाइड नहीं किया, तो एवरी टीचर इज यूजिंग देयर ओन प्लेटफॉर्म। हम लोग एक सेशन रखेंगे उसके ऊपर भी, माइक्रोसॉफ्ट मीट के ऊपर भी, ठीक है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम का भी एक सर्टिफिकेशन होती है जो मेरे पास है, और इनशाला जो है वो, अगर हम उस पर ट्रेनिंग एक सेशन रखेंगे जिसमें, अब डिपेंड करता है कि वो कब रहे, क्योंकि आज मेरे को एक नोटिफिकेशन आया कि हमारे 2 टेस्ट होंगे सितंबर में, 50-50 मार्क्स के, ठीक है। आई विल डेफिनेटली डिस्क्लोज द डेट्स बिफोर अ टाइम, कि मैं आपको दोनों डेट्स जो है वो आई थिंक इसी वीक में बता दूंगा कि वो 2 डेट्स कौन सी होंगी, जिस 2 डेट्स के ऊपर हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। बेसिकली टेस्ट असेसमेंट, एक असेसमेंट हमने जुलाई के एंड अगस्त में ली थी, स्टार्ट ऑफ द अगस्त ली थी, अब 2 हमें इसमें लेनी है और एक आपको हमें अक्टूबर में लेनी है। तो जो 2 सितंबर में लेनी है उसके डेट्स मैं आपको डेफिनेटली डिस्क्लोज कर दूंगा इसी वीक के अंदर कि वो कौन सी 2 डेट्स होंगी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होगी, क्या होगा, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, और वी हैव टू इम्प्रूव आवर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर
एप्लीकेशन विथ एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू यूज। हम जो आजकल मिस्टेक्स कर रहे होते हैं कि हम टेक्नोलॉजी तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखते, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं होती है, बस कोई यूज़ कर रहा है तो हम भी उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। आई थिंक योर टाइम इज ओवर। Like, share, comment and subscribe my channel.